Today we will study permutation and combination. What is permutation and what is combination? Permutation means just like an arrangement in which the things are arranged in a particular order. In permutation, order is compulsory, order is most important, and combination means just like a selection or collection of the things. In this permutation, order is not important. Okay. What is fundamental principle of counting? Here, suppose that if one work is done by m ways and other work is done by n ways, then the total work is done by m into n ways if they are done one after the another. ठीक है. Suppose that one work is done in 2 ways and after finishing that work the other work is done in 3 ways, then the total ways is 2 into 3, that is equal to 6 ways if both the work are being done one by one. Here one thing is to be noted, multiplication is nothing but it is a addition. For example, if you will see, there are 3 things in this column and 3 things in this column, and there are 3 things in this column, then either you may write 3 plus 3 plus 3 equal 9 or 3 into 3 equal 9. So it is sure कि multiplication is nothing but it is a simply addition. Now come to the sum module. Module 1. Suppose that this is Kota, this is Jaipur, and this is Delhi. There are 3 cities, Kota, Jaipur and Delhi. There are 3 ways from Kota to Jaipur, 3 ways from Kota to Jaipur, and 4 ways from Jaipur to Delhi. These are the 4 ways. Means one person can go from Kota to Jaipur and then Jaipur to Delhi. Jaipur to Delhi there are 4 ways, and Kota to Jaipur there are 3 ways. Then the question is, find the number of ways in which a person can travel from Kota to Delhi via Jaipur. ठीक है. कोई पर्सन अगर कोटा से दिल्ली जाता है तो जयपुर होते हुए कितने रास्तों से, टोटल कितने तरीके से जा सकता है. पहली बात तो कोटा से जयपुर जाएगा वो, और फिर जयपुर से कोटा जाएगा. ठीक है. चाहे किसी भी रास्ते से जा रहा है, आप देख रहे हैं इस रास्ते से भी इसके 4 ऑप्शन है. अगर इस रास्ते से पकड़ के जा रहा है तो यहाँ से इधर चला जाएगा, फिर इससे इस रास्ते से भी जा सकता है, फिर इस रास्ते से भी जा सकता है. यानी अगर कोई एक पर्टिकुलर रास्ता अगर कोटा से जयपुर के लिए जाता है, फिर जयपुर से दिल्ली को 4 रास्तों से जा सकता है. यानी एक रास्ते से 4 वेज, तो 3 रास्ते हैं, तो 1 into 4 प्लस 1 into 4 प्लस 1 into 4 आप कर सकते हो, तो प्लस या 3 into 4 कर सकते हो. दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन गो फ्रॉम कोटा टू दिल्ली वाया जयपुर. ठीक है. तो 1 into 4, क्योंकि एक अगर इस रास्ते को फॉलो करता है, इस रास्ते से जयपुर जाएगा, फिर यहाँ से 4 रास्ते उसको मिल जाएंगे. ऐसे ही इससे 4 वेज, फिर इससे 4 वेज, टोटल 1 into 4 प्लस 1 into 4 प्लस 1 into 4, दैट इज इक्वल टू टोटल 12 ways in which through which a person can go from Kota to Delhi via Jaipur. One example more.
if there are three cities A, B and C, B and A, there are three cities here, and कह रहा है कि there are 6 road between A and B. यहाँ से 6 roads हैं A और B के बीच में, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Total 6 roads are between the cities A and B, and 4 roads, 1, 2, 3 and 4. 4 roads are between B and C. The question is, there are 6 roads between A and B and 4 roads between B and C. How many ways one can drive from A to C via B? देखो A से C तक जाना है, B से होते हुए अगर कोई पर्सन जाना चाहता है तो A से C तक कितने तरीक़ों से जा सकता है? तो पहली बार between A and B there are 6 roads, and between B and C there are 6 roads. तो डायरेक्टली either you will say कि हर एक रास्ते को अगर इसको फॉलो करता है तो 4 वे से, इसको फॉलो करता है तो 4 वे से, तो चाहे आप ऐड करते जाओ या डायरेक्ट 6 into 4 कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा. तो 6 into 4 equal 24 ways. By 24 ways one can drive from A to C via B. Or you can say this 1 into 4, 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 and sum all these, you will get 24 ways through which you can go from A. One can drive from A to C via B. इसी में एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि इन हाउ मेनी वेज वन कैन गो फ्रॉम A to C एंड बैक टू A. देखो A से C तक जा रहा है और फिर A वापस आ रहा है, ठीक है. तो 6 into 4, देखो इधर से 6 A से B तक 6 है और फिर 4 रास्ते हैं तो 6 into 4 हो जाएगा. और फिर जब वापस लौटेगा तो यहाँ से इनके 4 रास्ते हैं, आगे 6 का रास्ते बन रहे हैं तो 4 into 6 ये टोटल वेज हो जाएगा. मतलब वन कैन ड्राइव फ्रॉम A to C एंड देन बैक टू A in 6 into 4 into 4 into 6 ways. इसी में एक और पार्ट है, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज. जैसे पहला पार्ट था कि देखो पहला पार्ट क्या था इसमें कि फर्स्ट पार्ट में वन कैन ड्राइव फ्रॉम A to C बाय B इन हाउ मेनी वेज. द टोटल वेज वाज 24. सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज A कैन गोज फ्रॉम A to C एंड देन बैक टू C. तो जितने तरीक़ों से जाएगा उतने ही तरीक़ों से, उतने ही रास्ते से वापस भी आ सकता है. यानी 6 into 4 into 4 into 6 आ जाएगा, क्योंकि उधर से 4 रास्ते मिलेंगे और आगे उसको 6 रास्ते मिल जाएंगे. थर्ड इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट है कि इन हाउ मेनी वेज वन कैन ड्राइव A to C एंड बैक टू A विदाउट यूजिंग द सेम रोड. तो अगर इधर से जब A से C तक जा रहा है तो A से B तक 6 into 4 आ जाएगा. 6 रास्ते A से B तक मिलेंगे, फिर B से C तक उसको 4 रास्ते मिलेंगे. तो 6 into 4 वेज से तो A से C तक पहुंच सकता है वाया B. लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते से वो वापस नहीं आएगा. तो सपोज दैट कि अगर इस रास्ते से गया तो अब इस रास्ते से B तक वापस नहीं आएगा तो इसके पास टोटल जो है 3 वेज बच रहे हैं. तो रिटर्निंग में वो 3 वेज B फॉलो करेगा और फिर B से A तक आने में कोई एक रास्ता उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस रास्ते से गया होगा उस रास्ते से उसको लौटना नहीं है. यहाँ पर टोटल 6 वेज है तो उसको 5 वेज ही फॉलो करना पड़ेगा. ये आ जाएगा into 5 वेज.
ये टोटल नंबर ऑफ वेज है in which one can go from A to C and C to A without follow the same path, using the same path. ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सपोज दैट दिस इज अ कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन वॉच ए मूवी। सपोज दैट दिस इज अ सिनेमा हाउस एंड हियर आर दीज आर द एंट्रीज E1, E2, E3, E4 and E5. A person wants to watch the movie or cinema. There are 5 entries, 5 gates, E1, E2, E3, E4. The question is कि how many ways a person can watch a movie। ठीक है, तो किसी भी गेट से एंट्री कर सकता है और किसी भी गेट से एग्जिट भी कर सकता है। तो टोटल एंट्री कितनी है? एंट्री इक्वल टू 5। टोटल देयर आर 5 एंट्रीज, देयर आर टोटल 5 एंट्रीज एंड एग्जिट कितना? टोटल एग्जिट इज इक्वल टू ऑल्सो 5। हैंस the number of ways a person can watch a movie equal 5 into 5 ways. So this is the total ways in which a person can watch a movie. Second part, if E1 and E3 are not allowed for exit. E1, this one, and E3, these two are not allowed for exit. ठीक है, एग्जिट के अलाउ नहीं है लेकिन एंट्री के लिए अलाउ है। तो टोटल एंट्रीज आर सेकेंड पार्ट में, अगर मान लो 2 गेट इसको एग्जिट के लिए अलाउ नहीं है, केवल एंट्री के अलाउ है, तो एंट्री में टोटल 5 आ जाएंगे। टोटल जो है 5 एंट्री हो जाएगी और ये 2 माइनस कर देंगे तो 3 एग्जिट होगा। इतने वेज से पर्सन कैन वॉच अ मूवी। ठीक है, क्योंकि एंट्री तो अलाउड है, एग्जिट अलाउड नहीं है। टोटल 5 into 3 ways that he can watch a movie, 5 into 3 ways। फिर कह रहा है इफ एंट्री एंड एग्जिट इज डिफरेंट, दोनों एंट्री जिस गेट से एंट्री कर रहा है उस गेट से मतलब एग्जिट नहीं कर सकता है, एग्जिट का रास्ता दूसरा है। ठीक है, तो एक तो अगर जिस रास्ते से एंट्री कर रहा है, जिस रास्ते से एंट्री करेगा उससे एग्जिट नहीं करेगा, तो एंट्री आपका 5 आएगा, क्योंकि पहले तो किसी भी गेट से एंट्री कर सकता है। तो टोटल एंट्री 5 आएगा। अब जिस रास्ते से एंट्री किया है उस रास्ते से एग्जिट नहीं करेगा तो रिमेनिंग जो गेट होंगे वो 4 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन वॉच अ मूवी 5 into 4 ways। ठीक है, 20 ways। टू दिस वेज ही कैन वॉच अ मूवी। ठीक है, नाउ कम टू द मॉड्यूल 3। In module 3, suppose that module 3, suppose that one coin is tossed, then there are 2 outcomes, either 1 or head or tail. If one coin is tossed, then since the total outcomes is 2, ठीक है, either head or tail, so the total outcomes is 2 to the power 1. Tossing is 1 time, so the total outcome is 2. If there are 2 coins, then head and tail, or head tail, so the total outcomes are 2 to the power 2, that is equal to 4. Either head, देखो what is the sample space of this one? The sample space of this is head tail
और इसका आ जाएगा हेड 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 टेल टेल हेड या टेल हेड. These are the possible outcomes if 2 coins is tossed simultaneously. If 3 coin is tossed, suppose that if 3 coin is tossed, then head tail head tail head tail head tail head tail head tail head. So the sample space are head 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 tail head tail head head tail 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 head head tail head tail 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 head or tail tail. So the total outcome is 2 to the power 3, that is equal to 8. Total outcomes are 8. Okay. So the last one is how many car number plates can be made. क्वेश्चन ध्यान से सुनना. How many car number plates can be made if each plate containing 2 different letters if of English alphabet followed by 3 different digits. ठीक है. तो आपको एक कार की नंबर प्लेट बनानी है और कार की नंबर प्लेट में कह रहा है कि 3 डिजिट होने चाहिए. मतलब पहले के जो 2 अल्फ़ाबेट होंगे इंग्लिश के जो डिफरेंट होंगे और 3 जो है डिजिट होंगे. इसमें डिजिट आएगा, इसमें भी डिजिट आएगा और इसमें भी डिजिट आएंगे. ठीक है. और इन दोनों में इंग्लिश अल्फ़ाबेट होने चाहिए जो कि डिफरेंट हो. यानी टोटल 5 जो है नंबर का आपको मतलब कार की नंबर प्लेट बनाने हैं. तो कह रहा है कि हाउ मेनी कार नंबर प्लेट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग 2 डिफरेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स. सॉरी 2 डिफरेंट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स. डिजिट भी इसमें डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे. तो आप देख सकते हो अगर टोटल देयर आर 26 अल्फ़ाबेट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस प्लेस टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी एक अल्फ़ाबेट यहाँ पे रखा जा सकता है. अब अगर जब ये प्लेस फिल हो जाएगा तो अब आपके पास टोटल कितना बचेगा? 25 अल्फ़ाबेट्स बचेंगे, क्योंकि 8 तो फिक्स हो गया, रिपीट करना नहीं है. तो 25 अल्फ़ाबेट्स में कोई यहाँ पे बढ़ सकते हैं. अब डिजिट कितने होते हैं? 0 to 9, दैट इज़ 10 डिजिट. टोटल आपके 10 डिजिट होंगे. तो इस पोजीशन पे 10 में से कोई भी डिजिट आप रख सकते हैं. 0 to 9 10 डिजिट. अब जो प्लेस कर देंगे वो अब इस पर नहीं प्लेस कर देंगे तो 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, 9 बचेगा. अब 9 में से जो प्लेस कर दिया अब वो यहाँ नहीं कर देंगे, टोटल बचेगा 8. तो दिस इज द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कार प्लेट्स. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ कार नंबर प्लेट्स. कार नंबर प्लेट्स इतने कार नंबर प्लेट्स आपको बनेंगे. आप देख सकते हैं कि पहले फर्स्ट 2 प्लेस पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के डिफरेंट लेटर हैं. फिर 10 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट अब एक जो प्लेस कर देंगे, बाकी 9 बचेंगे. इस वाले प्लेस पे 9 डिजिट उसको भी प्लेस कर देंगे तो 2 डिजिट तो फिक्स हो गए, बाकी 8 डिजिट बचेंगे. 8 में से कोई भी एक डिजिट रख सकते हैं. इतने नंबर ऑफ प्लेट्स जो है कार के बन सकते हैं. अब कह रहा है इफ़ 0 इज़ नॉट अलाउड एट फर्स्ट प्लेस,
अगर 0 पहले नंबर पे अलाउड नहीं होता है तो इसकी सेकेंड पार्ट में देखते हैं। पहले तो ये 2 डिफरेंट डिजिट जो है 2 डिफरेंट अल्फ़ाबेट ये तो रहेंगे ही रहेंगे। अब कह रहा है अगर इस पहले वाले डिजिट पे पहले वाले प्लेस पे अगर 0 नहीं रखते हैं तो जब 0 नहीं रखेंगे तो बाकी 9 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पे आएगा जो कि 9 में से आ जाएगा इनटू जो भी एक आया वो फिक्स हो गया। अब बाकी कितने बच गए 9 में से यहाँ पे 9 में से बच सकते हैं। उसके बाद 2 फिक्स हो गए तो 8 में से बच जाएंगे। तो दीज आर द नंबर ऑफ कार प्लेट्स, ठीक है। इफ 0 इज नॉट प्लेस्ड एट द फर्स्ट प्लेस तो कार नंबर प्लेट्स कितने बनेंगे। These are the car number plates if 0 is not placed at the first place, ठीक है। क्योंकि 0 अगर फर्स्ट प्लेस पे रख देंगे तो ये केस बन सकता है। आप जब नहीं रखेंगे तो 9 डिजिट बचेगा। अब 9 में 10 में से 9 एक तो भर दिया, बाकी 9 बचा। यहाँ के लिए 9 में से एक को और रख देंगे तो 2 डिजिट तो आपके फिक्स हो गए। बाकी 8 में से 8 किसी भी डिजिट को यहाँ रख सकते हैं। इतने नंबर ऑफ कार प्लेट्स जो है बनाए जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। बाकी चीज़ें नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।